वेलकम टू मास जेकब लाइव। मैं हूं मास जेकब। आप देख रहे हैं फेक मून मिशन अर्थमिस 2 एक्सपोज्ड। तो जीजो, एक बार फिर नासा ने कामयाबी से चांद पर इंसान लैंड करवाकर साबित कर दिया है कि सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने वाले झूठे हैं और नासा ने सच में अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद पर इंसान को लैंड करवाया था। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि क्या बकवास कर रहा है यार ये बंदा। अर्थमिस 2 मून मिशन चांद पर लैंड करने का मिशन तो था ही नहीं, ये तो सिर्फ चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस जमीन पर आने का मिशन था, राइट? तो यकीनन नासा 50-60 साल के बाद चांद पर वापस लैंड थोड़ा ही ना कर सकता है। ये तो नॉनसेंस बात है। ऐसा थोड़ी होता है हर बार नासा चांद पर लैंड करे। अभी उनका दिल किया कि चांद का बस चक्कर लगा के आए तो वो चक्कर लगाकर आ गए हैं, यही तो मिशन था। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नासा वाकई ही इंसानों को चांद का चक्कर लगवा कर वापस आया है, तो यकीनन आप डिजर्व करते हैं कि आपके मुंह के ऊपर पोटी लगाई जाए। जी हाँ, मैं ये बकवास नहीं कर रहा, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। आप खुद देख लें, दे आर शिटिंग ऑन योर फेस। आप जरा ये न्यूज क्लिप देखें जिसमें बताया जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए टॉयलेट यानी लैट्रीन खराब हो गई थी। आप जरा ये क्लिप देखें। Houston, we have a toilet problem. Shortly after Artemis 2 launched on its mission around the moon, the astronauts were concerned whether their only toilet was properly functioning. We had a controller issue with the toilet when they spun it up, so we got to work through that. That's going to take maybe a few hours to troubleshoot. Luckily, the problem with the only toilet on board was solved a few hours later. Before going to sleep, NASA astronaut Christina Cook checked with Houston to see if the toilet was safe to use. You are good to use toilet all night. But how do toilets work in space? In a video filmed for Nat Geo ahead of the Artemis 2 launch, Cook gave a tour inside the Orion crew capsule toilet. You need handholds because you're just floating up all over the place. But even with the out-of-this-world commode, these astronauts have a backup plan, as retired astronaut Clayton Anderson told CNN. I'm guessing they're all wearing a MAG. NASA calls it a maximum absorbency garment. That's code word for diaper. And but I would caution everybody, just simply using a diaper as an adult is a lot more difficult than when we were tiny. And laying on your back and trying to fill that diaper while laying on your back is another training exercise you can go through at home with your friends and neighbors. Again, I wanted to ask about the troubleshooting of the toilet that happened on that first day. Can you just explain to us what the issue was and how they fixed it? And on a priority scale, would you say this was a number 1 priority or a number 2? So when we had always planned to wet the toilet with some water that we had pulled out of the PWD, the potable water dispenser, and it turns out, I guess, we didn't put enough in, and so the pump was not fully wetted, and so it has automatic fault detection in that if it's not fully wetted, it'll shut itself down. So once we figured out that we didn't put enough water in, we put more in there, made sure that it was essentially primed, the pump was primed, and then the toilet came right back up. तो यकीनन चांद पर जाने के लिए लैट्रीन का ठीक होना तो बहुत जरूरी चीज है। इतने दिन ये स्पेस में कैसे रहेंगे, इसी के बारे में तो हम इंतजार कर रहे थे कि हमें नासा बताए कि लैट्रीन ठीक है कि नहीं है एस्ट्रोनॉट्स की। ये लिटरली लोगों के मुंह के ऊपर पोटी उठा उठा कर मार रहे हैं कि तुम लोग डिजर्व करते हो कि तुम्हारे मुंह पर शिट मारी जाए। फिर सिर्फ यही नहीं, जब लैट्रीन की बात हो रही है तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट स्नो फॉलिंग, राइट? आप सोच रहे होंगे कि स्नो फॉलिंग का लैट्रीन से क्या ताल्लुक है। तो आप जरा ये क्लिप देखें। न्यूज में बताया जा रहा है कि ये स्नो फॉलिंग नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट का सुसु है। जी हाँ, आप जरा ये क्लिप देखें। And Christina Cook taking the camera to show us a wastewater dump. So you heard Commander Reed Wiseman that
Commander Reed Wiseman reporting that they don't necessarily hear those wastewater dumps, but that they do see them. So you're getting a live look outside the windows of the Orion spacecraft as they conduct that wastewater dump. तो मतलब नासा न्यूज चैनल्स पर सुसु पोटी के बारे में बता रहा है, जहां से साफ जाहिर है कि ये ना तो चांद पर कभी लैंड हुए थे और ना अभी ये चांद के गिर्द चक्कर लगाकर आए हैं। अब सबसे बड़ी वजह आर्टेमिस 2 की लॉन्च डेट है। जिस तारीख को आर्टेमिस मून मिशन लॉन्च किया गया वो क्या तारीख थी? 1 अप्रैल, यानी कि अप्रैल फूल्स वाले डे पर ये मिशन लॉन्च किया गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है अजीजों, ये डेलिब्रेट है, क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और मानते हैं कि आम लोग डिजर्व करते हैं कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाए। आर्टेमिस 2 मून मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिनमें से 3 आदमी और 1 औरत है, जिसका नाम क्रिस्टीना कुक है। क्रिस्टीना कुक 2015 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड में एक्टिंग कर चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्रिस्टीना खड़ी हुई है। लेकिन एक मिनट, ये तो एस्ट्रोनॉट नहीं थी, तो ये एक्टिंग क्यों कर रही है? According to IMDb, NASA astronaut Christina Cook is credited as an actress in 2015 film Mad Max Fury Road, appearing as one of the Wolverine. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सभी बड़े बड़े काम करने वाले एक्टर्स ही क्यों निकलते हैं? जैसे ट्रंप का शूटर मैथ्यू क्रुक्स, वो भी एक्टर था। चार्ली कर्क का शूटर रॉबिन्सन टाइलर, वो भी एक्टर था। चार्ली कर्क खुद एक एक्टर था, ट्रंप खुद एक एक्टर है, तो ये सारे मिलकर एक्टिंग कर रहे हैं अजीजों। जैसे फिल्मों में फिक्शन दिखाई जाती है जो हकीकत नहीं होता है, वो सब कुछ एक्टर्स एक्टिंग करके दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आर्टेमिस 2 मून मिशन में भी एक फिल्म चलाई जा रही है, जिसका असल मकसद मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सबूत देना चाहता हूं, ताकि आप ये मत सोचें कि अलमास अपने पास से ही हवाई बातें करी जा रहा है। तो यही वजह है कि मैं हर वीडियो में आपके साथ सबूत पेश करता हूं, ताकि आप कंफ्यूज्ड ना रहें। तो आप जरा गौर से देखें, ये तस्वीरें आर्टेमिस 2 ने सो कोल्ड जमीन की ली हैं, जो कि एक ग्लोब दिखाई दे रही है जमीन। एक तस्वीर दिन की है और दूसरी तस्वीर रात की है। अब अगर आप गौर से देखें तो दोनों तस्वीरों में बादलों की शेप एक ही है, जबकि नासा के मुताबिक हमारी जमीन 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। तो अगर जमीन इतनी तेज स्पीड से घूम रही है, तो सुबह से रात तक जमीन पर बादल बिल्कुल स्टिल कैसे हैं? क्या जमीन पर उस दिन कोई हवा नहीं चल रही थी? आप खुद आसमान पर देखें, बादल थोड़ी ही देर में अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। तो इस तस्वीर में बादल बिल्कुल सेम कैसे है? और तस्वीर का एंगल भी बिल्कुल सेम है, जैसे कैमरा बिल्कुल एक ट्राइपॉड पर लगाकर यह तस्वीर ली गई हो। अगर आप गौर करें तो यहां पर जो लैंड मैस दिखाया जा रहा है जमीन के ऊपर, वो लैंड मैस भी बिल्कुल सेम उसी जगह के ऊपर है। मतलब ये तस्वीर फेक है। ये तभी मुमकिन है जब जमीन भी अपनी जगह पर स्टिल हो और आर्टेमिस 2 भी बिल्कुल स्टिल हो आसमान के ऊपर स्पेस में, और जमीन पर हवा बिल्कुल ना चल रही हो, और सूरज जमीन के गिर्द घूम कर सामने से जमीन के पीछे चला जाए फौरन से। तभी दिन और रात की इस तरह की तस्वीर लेना मुमकिन था। तो यकीनन ये नामुमकिन है। अब इतनी चीजें हैं जो आपको बतानी हैं, लेकिन सब चीजें एक ही वीडियो में बताई नहीं जा सकती, इसलिए मैं अभी इस पर और मजीद वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर नासा पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है, तो वो ऐसा क्यों करेगा? इसका मकसद क्या होगा? तो वजह है खुदा का कलाम। जी हाँ, खुदा के कलाम को ये झूठा साबित करके और साइंस को सच्चा साबित करना चाहते हैं। आपको याद रखना है अजीजों कि साइंस पर बिलीव करने वाले खुदा के कलाम के बिल्कुल खिलाफ चलते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि ज़मीन व आसमान को खुदा ने 6 दिन में बनाया और 7वें दिन खुदा ने आराम किया। तो ये कहते हैं कि नहीं, ज़मीन बिग बैंग से खुद ही वजूद में आ गई और ये सारा प्रोसेस बनने का सैकड़ों करोड़ों साल का है।
साइंस हर मुमकिन खुदा का इनकार करने की कोशिश करती है। यही वजह है कि नासा के लोग या जितने भी साइंटिस्ट्स हैं ये सब गिराए हुए फरिश्तों की तालीम पर ईमान रखते हैं। इसीलिए नासा अपने मिशंस का नाम यूनानी या रोमी देवी देवताओं के नाम पर रखता है। जैसे अर्थमिस एक यूनानी देवी का नाम है। ये देवी जंगली जानवरों का शिकार करने वाली शिकारी देवी मानी जाती है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये मानते हैं कि आम इंसान जानवर होते हैं जिनको कुछ समझ नहीं होती, इसीलिए ये इंसानों को सोशल एनिमल का नाम देते हैं। अर्थमिस यूनानी देवता अपोलो की ट्विन सिस्टर यानी जुड़वा बहन का नाम है। अपोलो 11 मिशन तो आपको याद ही होगा, जिसके जरिए इन्होंने मशहूर करवा दिया था कि इंसान ने पहला कदम चांद पर रख दिया है। अब दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, आप सिर्फ खुदा के कलाम बाइबल को मत लें, आप दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं आप सारी किताबें उठाकर देख लें, वो सभी ये मानते हैं कि ज़मीन एक ही जगह पर साकिन है और सूरज और चांद ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है यशुआ ने सूरज और चांद को हुक्म दिया कि साकिन हो जाएं ताकि कौम इसराइल जंग जीत जाए, और आप देखें कि सूरज और चांद रुक जाता है। ऐसा खुदा के कलाम में लिखा है। यशुआ ने जमीन को रुकने का हुक्म नहीं दिया था, उसने सूरज और चांद को रुकने का हुक्म दिया था। अभी और भी बहुत कुछ आपको बताना है, पर अभी के लिए इतना ही है। इस टॉपिक पर अभी और वीडियोस आएंगी, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर मजीद वीडियोस बनाऊं, मजीद क्लैरिटी आपको दूं, तो कमेंट्स में लिखें पार्ट 2। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।